Hello everyone, welcome to my channel. Now start with the first sentence. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरी इतनी परवाह कर सकता है. I could not imagine someone taking care of me. Now read again. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरी इतनी परवाह कर सकता है या मेरी इतनी परवाह कर रहा है. Now English. I could not imagine someone taking care of me. Move to the next sentence. लेकिन तुम्हें यह ड्रेस कहाँ से मिली? बट वेयर डिड यू गेट दैट ड्रेस फ्रॉम? नाउ रीड अगेन. लेकिन तुम्हें यह ड्रेस कहाँ से मिली? बट वेयर डिड यू गेट दैट ड्रेस फ्रॉम? One important thing here, this is interrogative sentence, and in interrogative sentence we do not use preposition before interrogative word. Like before where we cannot use from. So from where is not appropriate to use together. So that's why in this sentence we use preposition at last. We can take some more example of using preposition at last in an interrogative sentence. Example 1. What school club are you in? Second example, what was he famous for? And third one is, what is he looking at? So we have seen all of these example. So preposition has been used at last. Now move to the next sentence. तुम्हारी मम्मी के वार्डरोब से, या फिर क्या यह तुम्हारी थी? From your mom's wardrobe, or was it yours? This was a question because boy asked where did you get that dress from. So she replied angrily that from your mom's wardrobe, or was it yours? So this was the meaning. Now read again the same sentence. तुम्हारी मम्मी के वार्डरोब से, या फिर क्या यह तुम्हारी थी? From your mom's wardrobe, or was it yours? Now move to the next sentence. मैंने तुम्हें पहले ही कितनी बार कहा है कि जितना दूर रहो उतना अच्छा. I told you many times already, the further the better. Now read again. मैंने तुम्हें पहले ही कितनी बार कहा है जितना दूर रहो उतना अच्छा है. I told you many times already, the further the better. Further means आगे, further the better means कि जितना दूर रहो उतना अच्छा है. We often hear similar sentence, stay away from me. So this is alternative of that. I told you many times that the further is better. Now move to the next sentence. तुम्हारी आँखें बहुत ही खूबसूरत हैं. You got some really pretty eyes. Now read again. तुम्हारी आँखें बहुत ही खूबसूरत हैं. You got some really pretty eyes. Now move to the next sentence. तो इसलिए तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ने का निर्णय लिया. So that's why you decided to break up with me. Break up here means रिश्ता तोड़ना या संबंध विच्छेद करना. Because she has seen her fiancé talking to someone else and caring her so much. So that's why she is saying. तो इसलिए तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ने का निर्णय लिया. That mean in English, so that's why you decided to break up with me. Move to the next sentence. मुझे बस ऐसा महसूस होता है कि वह बस तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है. I feel like he just making fun of you. Now read again. मुझे ऐसा महसूस होता है कि वह बस तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है. I feel like he is just making fun of you. Making fun of someone means कि मजाक उड़ाना. Feel like means ऐसा महसूस करना. Move to the next sentence. मुझे तुम्हारा उस अमीर लड़के के साथ बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं. I don't like you hanging out with that rich kid. Now read again. मुझे तुम्हारा उस अमीर लड़के के साथ बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं. I don't like you hanging out with that rich kid. Hang out means कि बाहर घूमना, निकलना फ्रेंड्स के साथ. So in that sense the word has been used. Now move to the next sentence. उसे मेरे सामने ये साबित करने के लिए कहो कि वह तुम्हारी भावनाओं के साथ नहीं खेल रहा है. Let him tell me to my face that he is not hurting you. Hurting means दिल दुखाना या किसी को परेशान करना या भावनाओं के साथ खेलना. Now read again. उसे मेरे सामने ये साबित करने के लिए कहो कि वह तुम्हारी भावनाओं के साथ नहीं खेल रहा है. Let him tell me to my face that he is not hurting you. Tell me to my face means कि मेरे सामने ये साबित करे. Move to the next sentence. यह नाचीज इंसान कौन है और इसने मेरी ड्रेस क्यों पहनी हुई है? Who is this nobody and why is she wearing my dress? Now read again.
यह नाचीज इंसान कौन है और इसने मेरी ड्रेस क्यों पहनी हुई है? हु इज़ दिस नोबडी एंड वाई इज़ शी वेयरिंग माई ड्रेस? नोबडी मीन्स नाचीज इंसान और जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सो हु इज़ दिस नोबडी मीन्स कि यह एक नाचीज इंसान कौन है, मतलब जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। लेकिन तुमने मेरी सारी चीज़ें नदी के किनारे नीचे गिरा दी। सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक, गिरा देती की जगह गिरा दी थी होना चाहिए था। सो आप लोग इसे गिरा दी थी के मीनिंग के तौर पर लें। बट यू डिड थ्रो ऑल माई स्टफ डाउन इन द शो। शो मीन्स किनारा। सिनोनिम्स हैं इसके शी शो, सी साइड, बीच, कोस्ट। नाउ रीड अगेन द सेम सेंटेंस। लेकिन तुमने मेरी सारी चीज़ें नदी के किनारे नीचे गिरा दी थी। बट यू डिड थ्रो ऑल माई स्टफ डाउन इन द शो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसका कोई अपना मूल्य और शिक्षा नहीं, जो सिर्फ इधर उधर घूमता है। यू आर अ पर्सन विद नो वैल्यूज़ और एजुकेशन दैट वॉक्स अराउंड। नो वैल्यूज़ और एजुकेशन मीन्स जिसने कोई शिक्षा नहीं ली, अनपढ़ है और जिसका कोई मूल्य नहीं है। वॉक्स अराउंड मीन्स कि इधर उधर घूमना। नाउ रीड अगेन। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसका कोई अपना मूल्य और शिक्षा नहीं, जो सिर्फ इधर उधर घूमता है। यू आर अ पर्सन विद नो वैल्यूज़ और एजुकेशन दैट वॉक्स अराउंड। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं जानती थी इन आंखों के पीछे एक बहुत ही अच्छा इंसान था। आई न्यू दैट बिहाइंड दोज आइज देयर वॉज अ नाइस पर्सन। रीड अगेन। मैं जानती थी इन आंखों के पीछे एक बहुत ही अच्छा इंसान था। आई न्यू दैट बिहाइंड दोज आइज देयर वॉज अ नाइस पर्सन। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मैंने हंसना शुरू किया। सिंस यू अराइव्ड आई स्टार्टेड स्माइलिंग। नाउ रीड अगेन। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मैंने हंसना शुरू किया। सिंस यू अराइव्ड आई स्टार्टेड स्माइलिंग। अराइव मीन्स आगमन होना या किसी का ज़िंदगी में आना। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। और मैंने उन चीज़ों को महसूस करना शुरू किया जो बहुत दूर जा चुकी थी। एंड आई स्टार्टेड टू फील थिंग्स दैट वर वेरी फार गॉन। नाउ रीड अगेन। और मैंने उन चीज़ों को महसूस करना शुरू किया जो बहुत दूर जा चुकी थी। एंड आई स्टार्टेड टू फील थिंग्स दैट वर वेरी फार गॉन। आई स्टार्टेड टू फील थिंग्स मीन्स कि मैंने चीज़ों को महसूस करना शुरू किया। वर वेरी फार गॉन मीन्स कि दूर जा चुकी थी। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। और देखो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। एंड लुक आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। नाउ रीड अगेन। और देखो मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। एंड लुक आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। That's all for today. If you like my video, hit like button and do subscribe and share with your friend so that you do not miss my upcoming video. And how did you like my video? Do share your opinion down in the comment box. To watch my complete video, check description box. I have given link there with the name of Hollywood and Bollywood subtitles. Thanks for watching to all my viewers and have a nice day and sweet dreams for those who are watching in night.